care, stay safe, and stay healthy in mind, body, and soul. God bless you all. Thank you. Bye bye, Nina ji. Bye. Thank Take you. care. Nice talking to you. See Nice you talking to you. once Good we luck. start shooting. तो ये हैं MPL के SVP ग्रोथ एंड मार्केटिंग. वेलकम टू द शो अभिषेक. थैंक यू सलमान. मेरी पहली पिक्चर थी MPK, मैंने प्यार किया. तो आप हमें बता सकते हैं कि ये MPL क्या है? MPL एक गेमिंग ऐप है. It's a mobile gaming app with more than 50 plus games across various different categories. So some of the top games are like fantasy cricket, world cricket championship. One second, Abhishek. Just now, Arbaz showed me something that you're doing. Yep. We work. I just saw it. It's outstanding. Yep. Day before yesterday, he showed it to me. So, Abhishek, why has MPL chosen to associate with Big Boss this time? So MPL is a gaming app, and pretty much our entire TG is anyone and everyone in India who has a smartphone. So we want to reach out to every single household in the country. And honestly, when the opportunity came to us, I mean, what better way to reach the entire country than via Big Boss, which is one of the biggest reality TV shows in India, and of course via Salman Khan, who's the biggest superstar in the country. So it was pretty much like a no-brainer for us to take up this opportunity. तो बिग बॉस के थ्रू आप किस तरीके का एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं? So the brand recall and the buzz associated with Big Boss is generally very strong amongst the public, and a bunch of activities that we have planned on the show, on colors and also on food. We expect that a lot of the viewers of the show will come onto the app and try out the property. And Big Boss 4 महीने तक चलता है, तो we hope लाखों दर्शकों जो देखते हैं शो को, they'll hopefully get to know about the brand and also try the app sometime over the next 4 months. तो आपके लिए कुछ फन इंटरैक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिनमें आपको गेस करना है कि कौन होगा बिग बॉस सीजन 14 का विनर. मजाक कर रहा हूं. कौन होंगे बिग बॉस सीजन 14 के 2020 14 बोलो, 2020 बोलो, 14 बोलो के कंटेस्टेंट्स. Abhishek, would you like to say something? So the winners, the guys who guess correctly, will be winning some vouchers from MPL. तो आप में से कौन विनर्स बनेंगे ये पता चलेगा 3 अक्टूबर को जब बिग बॉस 14 शुरू होगा. Thank you. All the best to all of you. And thank you, Abhishek. Thank you, Salman. Hoping for a long association, Abhishek. Same here. Till the time I'm in Big Boss. All right, Abhishek. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. अब यहाँ पर एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, खूबसूरत, बहुत ही सही व्यक्ति आने वाली हैं, पर्सन आने वाली हैं, जो बिना शर्माए सारे जवाब देंगी. ये है कलर्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर मनीषा शर्मा. हाय मनीषा. Hi Salman, how are you? तो पूरा देश जानने के लिए उत्सुक है कि मनीषा शर्मा इस लॉकडाउन में क्या कर रही थी. अदर देन आजकल सब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे काम कर रहे हैं. अदर देन दैट, The fact is that it's been not easy working from home. As you know, I have a small baby now, so I've been on his online classes, and he has no concept. उसको तो concept ही नहीं है बिल्कुल online classes का. तो वहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम जाता है. फिर घर का काम, घर में बैठ के बस बैठे बैठे हम लोग पागल हो रहे हैं. तो पूरे दिन the highlight of our life is work actually. तो हम बिग बॉस पे लगे रहते हैं to feel कि कब शो आएगा, कब जिंदगी आगे बढ़ेगी. So that's what I've been doing, Salma. Good, I'm glad. But you discovered motherhood as soon as your child came in. So can you tell us more about the theme of this Big Boss season 14? As people have seen it, and we all have been under a severe lockdown. It's been almost 6 months now. तो हम अभी अब सीन पलटेगा, Big Boss देगा जवाब 2020 को. We have got a lot of things for the viewers, which is going to be almost like very hopeful, very exciting. A lot of things that we have not been able to do, and we have not been able to go back to our normal lives. तो हम वो सब mind में रख के Big Boss के लिए हमने बहुत सारे चीजें प्लान की हैं. And 2 हफ्ते में आप लोग देखेंगे
एकदम धमाका, पहले 2 हफ्ते 14 डेज के गेम होगा, एक हम लोगों ने प्लान किया है 14 दिन का गेम, सो दैट विल ऑल बी रिवील्ड जब सीन पलटेगा और बिग बॉस देगा जवाब, जैसे आप बोलते हैं 2020 का। अच्छा, ये this season, Manisha, this season, how is it going to be exactly the same as the other seasons? I mean, different from the other seasons. मुझे नहीं कहना आपको हर सीजन ये अलग होगा, पर आप लोग और हमारे दर्शक जानते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ नया प्लान करके आते हैं। और इस टाइम मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे कंटेस्टेंट्स तो 100 दिन घर में लॉकडाउन में ही रहते हैं, तो इस बारी पूरा वर्ल्ड, इंडिया, सब ने एक्सपीरियंस किया है कुछ। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट इज व्हाट बिग बॉस इज आल्सो ऑल अबाउट। सो अलग के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, पर बहुत बहुत प्लान किया है, बहुत मस्ती डाली है, बहुत हार्ड वर्क डाला हुआ है, एंड हम जेन्युइनली चाहते हैं इस साल कि हमारे व्यूअर्स घर बैठे इंजॉय करें और सेफ रहें और हमको सारा काम करने दीजिए। अच्छा, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बिग बॉस के बारे में जो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ये दिन में काम करते हैं, घर पे जाते हैं रात को। अब इतने सीजन्स होने के बावजूद ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये घर में आते हैं और रात को घर जाते हैं अपने अपने। तो ये प्लीज़ कंफर्म कीजिए। मैं तो हज़ारों करोड़ों बार बोल चुका हूँ ये कि एक बार जो घर के अंदर गया वो जब तक के उसको बाहर नहीं निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ कम वोट्स, वो घर के अंदर ही है। और अगर कोई इंसान घर जाता है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं घर नहीं जाता। तो मैं जाता हूँ, आता हूँ, हफ्ते के 2 एपिसोड्स कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं अपने खुद के घर जाता हूँ। सलमान, अगर ये लोग घर जाके सो रहे होते तो हमारा तो बजट ही बहुत बच जाता। दूसरी बात, आपको पता है सिर्फ आपके अलावा और कोई घर ही नहीं जाता है यहाँ पे। उनको जब तक ये शो चलता है लॉकडाउन में रखा जाता है बिग बॉस के घर में, और आप लोग उनको 24 घंटे भी स्ट्रीम पे देख पाए। एक जमाने में हम जब लाइव स्ट्रीमिंग 24 आवर्स करते थे, तो ये मदर ऑफ ऑल रियलिटी शो है, और इसकी खासियत ही है वर्ल्ड वाइड कि ये कैप्टिव रियलिटी टेलीविजन है, और कम से कम 100 कैमरामैन यहाँ पे लगे हुए हैं, 24 घंटे उनको शूट करते हैं। तो अभी तभी आपने देखा है बाथरूम से लेकर स्लीपिंग से लेकर बिना मेकअप के, आपने सब तरीके, सब मूड, सब गंदे बिना मेकअप के, अच्छे खूबसूरत, सब कुछ दिखता है यहाँ पे। ये सवाल है जो कि लोग सोशल मीडिया पे प्लस मुझसे पूछते हैं कि ये शो आप लोग स्क्रिप्ट करते हो, स्क्रिप्टेड शो है। अब भला बताओ कि इस शो को कोई कैसे स्क्रिप्ट कर सकता है? तो सलमान, आप भी जानते हैं ये स्क्रिप्टेड शो होता तो एक तो कितना हमारे लिए कितना कंट्रोल में रह पाता है। यहाँ तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी बहुत एक्साइटिंग हो जाता है तो कभी बहुत बोरिंग हो जाता है। इतना लंबा स्क्रिप्ट, 100 दिन, कौन रोया, क्यों रोया, किसने किसको मारा, कौन बैठ के ऐसे सोच सोच के रात को इमेजिन करके लिख पाता। तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कैप्टिव रियलिटी शो है। ये एक्चुअली मदर ऑफ ऑल रियलिटी शोज। आपने देखा ये देश भर में वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर शो है। दुनिया का बड़ा से बड़ा राइटर और राइटिंग टीम भी ये शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। हर सेकंड में ट्विस्ट, हर सेकंड में इमोशन बदलता है, हर सेकंड के अंदर लॉयल्टीज़ चेंज हो जाती हैं, हंसी आ जाती है, रोना आ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। टास्क के अंदर कैसे स्क्रिप्ट करोगे आप ये? एंड नोबडी इन द वर्ल्ड कैन बी सच गुड परफॉर्मर्स। ये सब है नेचुरल है। आप ना सिद्धार्थ शुक्ला, ना आप गौहर खान, ना आप शहनाज, ना किसी को भी है, ना किसी को भी आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते आप। दिस इज़ जस्ट देयर पर्सनैलिटीज़ जो आपको भा जाती है। मनीषा, ये जो हमारे प्रेस मेंबर्स हैं इनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं इनको कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। देव सपोर्टेड अस फॉर ऑल दीज इयर्स एंड दिस इज वन टाइम वी नीड मैक्सिमम सपोर्ट। हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप लोग अभी सब लोग अपने अपने काम पे आने लगे हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से शोज पे, शूट्स पे आना शुरू हो गया हम सबका।
हमको चाहिए कि आप लोग हमको सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स घर पे सेफ रहें और हम सारा हार्डवर्क करें आप लोगों के साथ और एंटरटेनमेंट दें हमारे व्यूअर्स को। जब तक ये क्राइसिस है हम लोगों के ऊपर, हम चाहते हैं आप लोग घर बैठे हैं और हम मीडिया से चाहते हैं कि, और ग्रेटफुल भी हैं, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें यहाँ भी सपोर्ट करें हमारा शो को एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए, क्योंकि अब सीन पलटेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मनीषा कि हम सब की सेफ्टी का क्या प्रबंध किया है आपने? सलमान, आप तो जानते हैं इस बारी थोड़ा स्ट्रेसफुल है कोरोना की वजह से, और किसी को भी अगर कोरोना के सिम्टम्स या कोरोना होता है तो हम शूटिंग रोकते हैं। अभी ये आपके 2 सवालों का जवाब और देगा कि क्योंकि ये रियल टाइम शो है, हम एक तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि कंटेस्टेंट्स को सबको हमको कोविड टेस्ट करा के घर के अंदर लेके जाएंगे, उनको ऑलरेडी बाहर क्वारंटाइन करके फिर अंदर लेके जाएंगे। हमारा क्रू को रेगुलर टेस्ट करना पड़ेगा और हम चांस ही नहीं ले पाएंगे कि ऑप्शन ही नहीं है कि कोई बीमार पड़े। गॉड फॉरबिड अगर कोई बीमार पड़ेगा इस शो पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। हमको कैमरास कंटेस्टेंट्स को देने पड़ेंगे जो घर से शूट करेंगे अपना। तो आई होप वहां तक बात ही ना पहुंचे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको नॉट ओनली कंटेस्टेंट्स जो घर में हैं उनकी शूटिंग स्किल्स भी आपको दिखने लगेंगी। जब तक हमारे को वो SOPs फॉलो करने पड़ेंगे टू कीप एवरीबडी सेफ। हर वीकेंड को हम लोगों को कोविड टेस्ट करने पड़ेंगे, पूरे यूनिट पूरे क्रू का जो शूट पे आते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस हमने ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं, बट आई होप दैट बिहाइंड द सीन्स टफ होगा, but like I said, we are committed, we are makers of entertainment and show must go on. Manisha, just say a few good words for me for next season. I'm so happy to see you, Salman. I'm so happy you're safe. I'm so happy that you're looking so good as usual. And ये show, I can't imagine कि ये show में creative अगर हम लोग सोचते हैं आपके बिना, आपका flavor, आपका attitude, आपकी मस्ती. And I'm really looking forward for the season to start, क्योंकि मैं यूजुअली इतना घुस जाती हूँ शो बनाने में, मैं खुद बैठ के देख ही नहीं पाती हूँ। पर इस साल मैंने डिसाइड किया है मेरा सारा हार्डवर्क लॉकडाउन में खत्म हो गया, अभी मैं रोज बैठ के आपको देखूंगी। How sweet. Thank you मनीषा, थैंक यू, बाय। इन दिनों जो प्रोमोज आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, उन्होंने सबको एकदम क्यूरियस कर दिया है एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, ये एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। लोग क्यूरियस होके मुझे फ्यूरियस कर रहे हैं बिकॉज दे आर कॉलिंग मी अप टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। और कलर्स वालों से मैं पूछ नहीं रहा हूं और वो मुझे बता भी नहीं रहे। तो डायरेक्टली हम इन तीनों से ही पता कर लेते हैं। लेट मी मेक देम जॉइन दिस पार्टी। हिना, गौहर एंड सिद्धार्थ। Hello, sir. Hi, Salman. How are you? अरे वाह, you guys are looking better and better. Hi, गौहर, हिना, सिद्धार्थ। तो सबसे पहले और फ्रैंकली कौन बताएगा कि what is going on, guys? बिग बॉस 14 में अब आप लोगों का क्या काम है? हमारा बहुत सारा काम है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। बट काम क्या है? For now, stay calm and wait for our काम। गौहर, चलिए आप बताइए हमें। अबे आप प्रोमो में आए हो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हो, अब क्या वापस से घर के अंदर भी जाओगी? आएंगे या नहीं आएंगे इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सब्र का फल जरूर मीठा होगा। एंड एनीवे, इट्स पे बैक टाइम, क्योंकि आज तक आपने हमें हमेशा सस्पेंस में रखा है। सो नाउ इट्स योर टर्न। नॉर्मली मैं वीकेंड का वार करता हूं, लेकिन कमाल हो गया कि आप लोग आज मुझ पर सस्पेंस का वार कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस किसी और शहर में होम क्वारंटीन हो गए हैं और यहां पर नहीं आ सकते हैं और आप लोग टेक ओवर कर रहे हो? सलमान सर, तो सीजन का नाम बिग बॉस 14 है, तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस तो अपनी जगह पर सलामत होंगे, लेकिन अब हम आए हैं तो जरूर कुछ तूफान तो लाएंगे ही। That's right. पहले हफ्तों में बहुत खलबली और बहुत सनसनी होने वाली है।
जी हाँ, 100% एंटरटेनमेंट की 100% गारंटी हम तीनों दे सकते हैं, क्योंकि इस बार पहले हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। आई मीन आज तक इन दी हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। क्या आप लोग कंटेस्टेंट बनकर कम बैक कर रहे हो ताकि इस टाइम के कंटेस्टेंट्स को आप टफ फाइट दे सको? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। थैंक यू, आप लोगों ने कुछ ना बताते हुए कुछ ना बताया। अब तो आपने सबको और भी सस्पेंस में डाल दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज वेट टिल 3rd of October, बहुत मजा आने वाला है। अक्टूबर 3 तो ऑडियंसेस जो आज देख रहे हैं, बिग बॉस के फैंस, अक्टूबर 3 को आपको पता चल जाएगा कि सेठ, हिना और गौहर क्या करने वाले हैं। सो हिना, गौहर और सिद्धार्थ होने वाले हैं बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा। कैसे, वो थोड़ा सा सस्पेंस है। तो अब आया है आज की शाम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मोमेंट। हम आपको फ्यूचर की एक झलक देने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू मीट अ कंटेस्टेंट हु यू गोइंग टू वॉच इन द बिग बॉस हाउस दिस सीजन। ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है। इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी। सो द सदस्य दैट वी आर अबाउट टू रिवील इज जॉन कुमार शानू। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। बहुत अच्छे जॉन कुमार शानू, बहुत अच्छे। यार जान, मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने शो तो देखा ही होगा और मैं आपके फादर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अनलेस ये एक आपका अलग साइड है और बिग बॉस के अंदर एक आप अलग साइड दिखाओगे। So honestly, Big Boss से ज़्यादा nervous I am because I'm meeting you for the first time in my life that मैं आपको मिल रहा हूँ sir. Actually, my full body is shaking because I have been your fan since before, like I got to know like anything that my dad has done with you, my work, like my dad has worked with you, and जो आपका presence है sir, उसके कारण मैं थोड़ा सा I'm just a bit dazed. You don't worry about me, John. You don't worry about me. You worry about the contestants inside. नहीं सर, घबराना है कंटेस्टेंट्स को मैं संभाल लूंगा। कंटेस्टेंट्स को सर मैं संभाल लूंगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा। बिकॉज सर मैं बहुत टाइम से ये शो देखते आ रहा हूँ, सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप घर में जा रहे हो। रोना नहीं घर में जाके कि डैडी की याद आ रही है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो। थोड़े से टास्क वास्क करना शुरू कर दो घर के अंदर ही। बिस्तर के नीचे घुस जाओ, 4 दिन तक निकलो नहीं। ओके सर। और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े। जी सर। बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो एट होम, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं अब, ऑलमोस्ट मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये तुम्हारी जो एक इनोसेंट जो स्माइल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुमको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
जी तो सर। मैं तो मैं एक एक्स कंटेस्टेंट को ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ कि आपको कुछ टिप्स दें, और ये है द विनर ऑफ सीजन 13 यानी कि 13, सिद्धार्थ शुक्ला। आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Hey John, what's up, my man? How you doing? All good, bro. Very excited for Big Boss. How about you? Me, I'm excited to see all of y'all and excited getting excited in anticipation, hoping what you guys are going to do. वैसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको पता है, इस घर में टिप्स देना था मुझे आपको कुछ, तो इस घर में रहने के लिए मैं आपको सिर्फ ये टिप्स दे सकता हूँ कि इस घर में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को डील करना आपको आना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? I think so. Yes, I'm up for it. हाँ, I am up for it. I think I can. great. And the only thing that I like to tell you is that you just need to be yourself, be real, and stand your ground and stand for anything that you feel is right. You need to voice yourself. Absolutely. Okay, now that you look so confident, let me get you into some situations here, and let's see how you react to them. All right. तो समझिए कि अगर घर में किसी लड़की ने आप पर चाय फेंक दी, तो आप क्या करेंगे? So, because I'm a singer, I would like to respond in a very musical manner. मैं बहुत ही musically उसका एक reply करूंगा, और उसके लिए मेरे पास एक गाना ये होगा, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझ पे गिराने वाली हो। क्या बात। एंड अगर वो चाय मेरे ऊपर सुबह के टाइम पे फेंके तो बेटर होगा, बिकॉज फिर मुझे जागने में दिक्कत नहीं होगी। सो आई थिंक दैट विल बी माय रिस्पॉन्स टू द गर्ल, बिकॉज दोनों अगर हम लोग झगड़ा करें, गर्म हो जाएगी ना, तो बात बनेगी नहीं। अगर वो एकदम गुस्से में है तो फिर मैं मैटर को ठंडा करके फिर उसको बाद में समझाऊंगा, एंड इफ शी डज नॉट then, like, if she does not understand, then I'll have to take the Sid approach, which I'm the Sid approach. Yes. Okay. So like a prototype to me, now. Absolutely. No. I'm trying to like take a lot of pointers, because you've really inspired, and like you've shown us how actually Big Boss is supposed to be played. So I think I'm going to try to do that. Then you're definitely not going to be singing. You possibly might just make people sing. Yeah. People singing. That's going to be a good change for me, since I have to sing wherever I go. To make people sing will be a good change. Right. Okay, I'll put you in another situation. अगर समझिए कि आपको लगातार लोग पोक करते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? As Rajnikant sir famously said कि भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, शेर अकेले चलता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहाँ पर मुझे ऐसी नौबत आई कि मुझे कंटिन्यूसली पोक किया जा रहा है, एंड मुझे उकसाया जा रहा है, तो एक हद तक तो मैं ठीक है ट्राई करूंगा मैटर को सुलझाने की। बट जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो मेरे भी जवाब होंगे, और शायद मेरे जवाब उनको पसंद ना हो। बट आई थिंक that's what this show is about, so I'm good up for it. Fantastic. तो शेर बाहर निकलेगा मतलब? बिल्कुल। Fantastic. Well done, जान कुमार। ये सब सुनने के बाद तो मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूँ, best of luck. Thank you so much. I'm sure it's going to be fun watching you. All right. तो सिद्धार्थ, आपने जान को टिप्स दे दिए? जी सर, थोड़े बहुत दिए हैं। आपको उसके लिए आसिम की जरूरत नहीं पड़ी? अकेले दे दिए? अकेले कोशिश की है सर, पता चलेगा। घर से बाहर निकलने के बाद आपका और आसिम का मुकाबला हुआ सुल्तानी बाहरी अखाड़े में? नहीं, अखाड़े में नहीं हो पाया सर, पर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत हुआ, पर वो भी इन ऑल एवरीथिंग वाज गुड। तो मतलब गुड, वेरी गुड। बिग बॉस वाला नहीं था फील। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद जी सर, करियर में थोड़ा सा ब्रेक आ गया?
जी सर, बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, सभी के लाइफ में बिल्कुल। आया है और Yes, सभी sir. को ये बहुत सिखा के जा रहा है. You learn बिल्कुल। to appreciate everything in life now. Yes. सब लोग, किसी के पास कोई काम नहीं है, अब काम करना शुरू करते हैं तो कोविड हो जाता है, तो सबको बहुत ही एहतियातन तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बुज़ुर्गों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, माता पिता के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. सो जब काम करना शुरू करो तो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना. जैसे बाल वाल भी कटवाने जा रहे हो तो पूरे एहतियात के साथ जाओ, बाल कटवाओ. ये सब आपके लिए ज़रूरी है. दैट यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर मदर. राइट. हर साल आप वीकेंड के एपिसोड्स में आप हमसे सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. सवाल में पूछो, जितने पूछना है पूछो, उनके जवाब मैं कतई नहीं दूंगा. अरे सर, ऐसा मत करो सर, क्योंकि सवाल मेरे नहीं है सर. हाँ. सर, सवाल मैं मीडिया की तरफ से पूछ रहा हूँ. अच्छा, मीडिया की तरफ से आप पूछेंगे. ठीक है, पूछिए. Okay, sir. What did you miss the most during the lockdown? Like watching movies in the theater, dining at a restaurant, shooting, traveling, या तो फिर आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इस सीजन बिग बॉस के घर में होना चाहिए था to experience all this? देखो, मैं एक्चुअली, जैसे हम सब अपने अपने घरों में बिग बॉस खेल ही रहे थे, तो मैं भी ये 6 महीने घर से निकला नहीं हूँ. आज टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली शूटिंग. जो भी थोड़े से सोशल मीडिया के पोस्ट करना था वो मैंने फार्म से किए हैं. फार्म पे इसलिए था क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो जस्ट टू बी सेफ. और हम लोग चले गए थे लॉकडाउन के पहले, और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सोचा कि वो 15-20 दिन में खुल जाएगा, और नहीं खुला तो मैं वहीं पर हूँ. और थैंक गॉड एक्चुअली के ओपन सी जगह है जो कि मेरे वालिद साहब ने करीबन 30 साल पहले ली थी, अब उसका कुछ काम आ रहा है. सो आई एम लकी दैट आई वाज देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सो आई कैन अंडरस्टैंड. वहाँ पर भी परेशानियाँ होती थी कि काम कब शुरू होगा. सो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि काम अच्छा लगता है मुझे करना. अब वो थिएटर्स में जा नहीं पाता पिक्चरें देखने के लिए वैसे भी, तो लॉकडाउन हो या नहीं हो, दैट अगर मैं पिक्चर देखने जाऊं तो लोग पिक्चर छोड़ के मुझे देखने लगते हैं. तो हॉस्पिटल्स ऑल्सो आई प्रेफर नॉट टू गो देयर बिकॉज पीपल forget their own loved ones and they turn to me. So the only times that I go to a hospital is to bring a smile on little children's faces. जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ, टाटा कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, तो वो बच्चे जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनसे मिल के आता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है. क्या सर, मेरे को बताइए, इतना टाइम आपने पनवेल के अपने फार्म हाउस में बिताया, हमने देखा आपको फार्मिंग करते हुए और एवरीथिंग. जी हाँ, खेती बाड़ी शुरू कर दी मैंने. कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी, वहाँ पे चावल उगा लिया, और फिर वर्कआउट करता था. फिर गेंदे के फूल की खेती उगाई है, चावल की काफ़ी फसल उगाई है, और चावल काफ़ी यहाँ तक उग भी गया है, तो बहुत अच्छा लगता है उस चावल की खेतियों को देखने के लिए. फैंटास्टिक. तो आपको अब शूट पे आके कैसा लग रहा है? डर लग रहा है क्योंकि हालांकि सब यहाँ पर मास्क पहने हैं, पीपीटी किट्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, लेकिन फिर भी वो माइक इस डिस्टेंस के ऊपर आता है, तो उनका वो जो मास्क है ऐसा लगता है कि कभी भी आके किस कर देगा आदमी, तो उससे डर लगता है. आजकल छींक से, खांसी से और किस से भी बहुत डर लगता है. आपको किस से डर लगता है, मतलब किसी से डर लग रहा है आपको? सर, मैं तो अभी सुरक्षित रह रहा हूँ, तो मैं ठीक है. आपकी जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जी, नाम क्या था उनका? शहनाज नाम था उनका. शहनाज, जी, वो कैसी हैं? एकदम खुश हैं सर. आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सीजन से? आपको लगता है कि लोगों को अभी फिर से लॉकडाउन में देखने का मन करेगा?
The other way to think of this is that now life goes on. So if they're a Big Boss fan, वो दिमाग वहाँ से हट के थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा. रोज़ी रोटी शुरू हो जाएगी. सोशल मीडियाज़ के ऊपर आप लोगों के फैंस के इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे. कोई आपके फॉर होगा, कोई आपके अगेंस्ट होगा, कोई मेरे फॉर होगा, कोई मेरे अगेंस्ट होगा, बट वो हाइप बढ़ता जाएगा क्योंकि वो इस शो से इतने जुड़े हैं कि काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं. सो वो आएंगे अभी बिग बॉस और सपोर्ट में, कभी आपके सपोर्ट में जो कंटेस्टेंट्स होंगे इस बार, कभी उनके सपोर्ट में, तो कभी मेरे सपोर्ट में. फिर ये राइवलरी वापस से शुरू हो जाएगी. बस आई जस्ट होप कि जो राइवलरी जो शुरू होती है ये एक लेवल में रहे, एक पॉजिटिविटी के साथ रहे. एक लैंग्वेज जो कि एक सही लैंग्वेज है उसमें रहे. बस इतनी ही दरख्वास्त है. एब्सोल्युटली सर. अच्छा मेरे को बताइए कि व्हाट इज इट दैट यू लर्न फ्रॉम 2020 एंड सिंस दिस सीजन इज सो डिफरेंट, आप सब कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये जितने भी 15-16 कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको काम मिल रहा है. काम कहीं शुरू नहीं हो रहा है, और जो हो भी रहा है तो किसी न किसी को कोविड-19 हो रहा है, फिर वो वापस से बंद हो रहा है, फिर वापस से शुरू हो रहा है. तो ये जो लोग होंगे ये क्वारंटीन होके घर के अंदर जाएंगे तो ये 3-4 महीने अंदर घर के बड़े ही सेफ हैं. तो ये कुछ भी कर सकते हैं अंदर. जो बाहर जो काम कर रहे हैं उनको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा. लेकिन इस बात की खुशी है कि कलर्स, वाईकॉम 18, बिग बॉस काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फैक्ट कि बिग बॉस हो रहा है और बहुत सारे लोग आर वेटिंग टू गो बैक टू वॉचिंग 9 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक का बिग बॉस सीजन 14. सर, are you like little scared of shooting during the pandemic? कोई apprehensions थे आपको? जी हाँ, मुझे बहुत apprehensions थे because there's a newborn in the house. Arpita, Ayush की एक my niece Ayat, and there's Ayat, there's my parents, and there's Helen auntie, and there are lots of senior citizens, friends, parents. तो हमको हो गया तो शायद we may be able to fight it. So that is so basically COVID-19, कोरोना अपने लिए इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितने के अपने वालों के लिए लगता है. इसीलिए तो if you're staying away, you go work, but then आपको हो गया, आपने जाके अपने माँ के पैर छुए या आपने उनको गले लगा है, किस किया है और आपने उनको दे दिया. So they may survive it. Obviously we want everyone to survive it. But वो जो एक 15-20 दिन का जो टेंशन होता है of that discomfort, breathing वगैरह, that is very scary. So काय को ये पंगा लें. बात सही है. और उससे पंगा लो जो दिखता है, जो नहीं दिखता है उसने पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया, तो किससे लड़ें? सही बात. सर, अच्छा मेरे को बताइए, बहुत से चैनल्स पे रियलिटी शोज आ रहे हैं, अब एक लीग आने वाली है, तो क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? अपना बिग बॉस आने वाला है तो देखो सर, काम तो सबको शुरू करना ही पड़ेगा और अपने आप का ध्यान रखोगे तो अपने लव्ड वंस का ध्यान रख पाओगे आप. तो यू हैव टू वर्क. सब काम करेंगे तो उन्नति होगी, जीडीपी बढ़ेगा. सो वी ऑल नीड टू वर्क. सबके आप छोटी चीज़ें, डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें जो कि आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, और जब आप वो खरीदते हो तो वो जो बेचता है वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता है. तो इस प्रकार से आपकी पूरी रूलिंग शुरू हो जाती है. तो काम आपको करना पड़ेगा. You have to be very careful, but
या तो फिर काम नहीं करोगे तो वो खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो यू हैव टू वर्क। राइट, वेरी ट्रू सर। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट सीजन वाज द बेस्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम। जी, आपको लगता है कि ये सीजन जो आने वाला है वो सीजन को सरपास कर पाएगा? सिद्धार्थ, जो आप लोगों ने लास्ट सीजन में किया है, you know, Asim, Aap, Siddharth, Right. and the whole lot of contestants, even Right. for the fact Madhurima, Vishal, और कौन थे वहाँ पर? शहनाज। Shahnaz was very good. So all these people have, the credit goes to all you people. ये आप लोगों की वजह से ये शो इतना बेहतरीन गया है और लोगों ने उसको इतना पसंद किया है। तो जो नेक्स्ट सीज़न है, आई होप इट इज़ बेटर, बट डिफ़िकल्ट है to compete with you guys, and I hope they compete with you guys and they do a much better show than your show. Yeah, I'm sure they will. Sir, personally, what do you feel about the theme of the season? बस एक ही है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ आप 2020 को किसी हद तक के जवाब दे सकते हो कि काम शुरू हो गया, लोगों की रोजी रोटी शुरू हो गई। दैट इज़ द ओनली वे आई सी कि 2020 को जवाब दे सकते हैं बिग बॉस। Very rightly said, sir. So now, what is your message for all your fans? So my message to my fans is, मैं उनको मैसेज करूँगा Personally, सबको। सोशल मीडिया पर। I'm sure they'll be So my more than message happy. to the fans is, the people who like you, they should like you even more. The people who do not like you should start liking you. जितने कम दुश्मन, उतने सुखी रहोगे आप. It's all about work now, and it's going to be all about, it has been all about work for me, and it will always be all about work for me. So my biggest frustration is this, that last 6 months, I have not worked. 30 साल में मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली जितनी कि मुझे एक फोर्सफुली ये छुट्टी लेनी पड़ी। तो जब से मैंने प्यार किया, मैंने की, उसके बाद से काम शुरू हुआ। I respected my work and everyone else also should do, which they actually do. ये एक फोर्सफुल हॉलिडे था। तो मेरी छुट्टी क्या होती थी, 25 दिसंबर से लेके 3 जैन तक। अब ये पिछले 10-12 साल से बिग बॉस आ गया, तो उसमें ही मुझे 2-3 दिन काम करना पड़ता है। तो but I'm very happy doing that. So अब वो पकड़ लो, do the math कि 30 साल में छुट्टियां कितनी, साल की 10 छुट्टियां, और ये पकड़ लो पूरा मैथ, 6-8 में 6-7 महीने से काम ही नहीं किया। तो मुझे मेरा एक पास्ट ऐसा लगता है कि परसों मैंने प्यार किया से पहले ये था कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। सो जब से काम करना शुरू किया, मुझे वो विजुअल अभी तक याद है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू माई लाइफ। सो आई कीप ऑन ऑल्सो सेइंग टू पीपल के देयर इज़ नथिंग बेटर देन गुड ऑनेस्ट वर्क। बी सिंसियर टू योर वर्क, treat your work as a hobby and you'll enjoy it. Absolutely, sir. Absolutely. Well said, and hope you have like many more years of work. Thank you. Always stay busy. Thank you, sir. And I hope so that you too start working very soon and start rocking it once again. Thank you so much, sir. Thank you for your wishes. Thank you, sir. चैनल से मिल लिए, कुछ एक्स कंटेस्टेंट से मिल लिए आप, एक फ्यूचर कंटेस्टेंट से मिल लिए आप, अब मिलिए प्रोड्यूसर से। एंडमॉल के सीईओ
अभिषेक रेगे। तो यूजुअली क्या होता है कि आपने एक हिट दे दिया, उसके बाद प्रेशर होता है अगली वाली फिल्म का। तो आपका बिग बॉस लास्ट सीज़न बहुत ही कामयाब रहा, तो इस सीज़न को लेकर आपके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना चैलेंज है? देखिए, चॉइस तो है नहीं, सीज़न तो आपको बेटर बनाना ही है। ये जो साल जो गुज़रा है बड़ा ही दुखदायक साल था और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। इस साल के दौरान हम ये बिग बॉस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सबको काम तो करना है, वो जितने भी नॉर्म्स हैं, लॉज है, सोशल डिस्टेंसिंग पर काम करने पर, वो सब फॉलो करके हम ये कर रहे हैं। ये जो न्यू नॉर्मल जो लोग कह रहे हैं ये बहुत ही कठिन है। तो आप हमें बताएं कि रियलिटी क्या है? So you're right. Thank you for the introduction on this. Sir, so basically, isme obviously the big success of the most successful season of the show that's happened last year. We really have to put all our might into making it better. And I think one of the key things for us in doing this is how do we kind of make it more and more interesting. And the biggest challenge that's come to us is this whole COVID situation, the new normal as we're calling it. And I think for us, it's about introducing the right talent into the house. It's about getting the new challenges to be creatively taken care of. It's introducing the viewer to all that they've missed out over a large part of this year to be put in the house. More than that, as we go ahead, we've had, after all these seasons and the biggest spike, we really have to have a lot of freshness for the audience to really want to watch the show. And I think a lot of tasks will be very interesting to watch. There'll be a lot more interactive and a lot of other ways to get to engage the viewers is what we will see this year. On the COVID norm, like you rightly said, I think there's a lot of standard operating procedures that we are following to ensure that we keep our crew and contestants very safe this season. The largest challenge for us is to ensure that everyone follows these norms and we ensure that the sterile and sanitized environment that we create for the contestants inside the house stays that way. So this new normal that we are talking about, so new normal is for the people jinke paas savings hain, you know, who have not lost any of their family members. उनको उनका राशन आ जाता है, खाने पीने का सामान आ जाता है. No, true. That's a loss that's completely irreparable, and it's easy to possibly maybe take a view on it, but it's really you will never be able to really fathom what has happened unless someone's experienced that. What so we all can my ensure. all my condolences to everyone who has lost somebody with COVID, with all the mushkilat that they had to face during this time, lost their jobs. I'm really saddened by that fact. We are focusing on is we want to ensure that as we work and as like you rightly said, people have to also look at how do they earn, how do they start their jobs again, and how does employment work out. This is the reason why मैं खुद ये Big Boss इस season कर रहा हूँ, क्योंकि Big Boss आएगा, लोगों की नौकरियां लगेंगी वापस से, लोगों की तनख्वाहें शुरू हो जाएंगी, लोगों के घर के अंदर खुद का राशन आना शुरू हो जाएगा. So this is the one reason that I once again doing this Big Boss season 14. The amount of employment that goes out, I understand there's a very large unit, so those immediate members who obviously get paid for this. इसके अलावा क्या क्या है? So your brand endorsements, and then इसका indirect, direct लाभ क्या है लोगों के ऊपर? So absolutely, sir, you're right. I was just coming to that is although the new normal wants us to have few people on set, we are putting people on the set in shifts, but the employment numbers is not what we're reducing at all.
So what we're doing is we're committing to basically the same strength of people to be on payrolls, although their time on the set will be reduced by shifts, so that we ensure safety. At the same time, we also ensure employment. So basically, you're trying to say that our production cost this time is going to go higher than all the seasons, just so that we do not take away rozgari from our staff. Absolutely, absolutely. On the ground, that is the reality we are following. And so we are also ensuring the care and everything part, but we will ensure that this part is always taken care of from an employment perspective. And we are paying full salary to everyone? We are paying salaries. So obviously you might not see huge increments on people, but we are paying full salary to people, even through all their waiting periods right now. Very good. What about mine? Doesn't matter. I'm more than happy to cut it down. Thank you so that much. Everyone else get paid. Thank you. And so I hope much. you have even bigger success. I hope you divert people's minds, from 9 o'clock to 10:30, 11, and give them a great show, so that वो 2 घंटे जो हैं उनको कुछ एक अच्छा देखने को मिले और उनका mind divert हो जाए. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. अब as a part of our सालाना routine, अब हम आपके थोड़े से pose, photographs लेंगे. तो आप सबको बता दूं, सुन लीजिएगा, बिग बॉस के फैंस के लिए सीन जरूर पलटेगा. 3 अक्टूबर रात 9 बजे एंड वीकडे यानी कि मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 PM ओनली, सिर्फ कलर्स पर, और टीवी से पहले एक्सक्लूसिवली ऑन वूट सेलेक्ट, ऑल्सो ऑन कलर्स HD, कलर्स HD +1 वगैरह वगैरह. दो 2020 को जवाब, पलट दो सीन को by meeting Big Boss. Till then, do whatever you want to do, man, but do it wearing mask and gloves and sanitize. बोर्डम होगा चकनाचूर, टेंशन का उड़ेगा फ्यूज, स्ट्रेस का बजेगा बैंड, होपलेसनेस की बजेगी पुंगी. अब सीन पलटेगा, क्योंकि बिग बॉस देगा 2020 को जवाब. MPL presents Big Boss, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme. Grand premiere शनिवार 3 अक्टूबर रात 9 बजे. किसने सोचा था हमको करना पड़ेगा झाड़ू कटका और पोछा, बट फिकर नॉट, अब सीन पलटेगा, क्योंकि बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब. MPL presents Big Boss, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme. Grand premiere शनिवार 3 अक्टूबर रात 9 बजे. The larger picture is this. ये टीवी देखने वाले हमारी लाज रख लेना. Happy to cut it down. Thank you so so that much. everyone else get paid. Thank you. And so I hope much. you have even bigger success. I hope you divert people's minds, from 9 o'clock to 10:30, 11, and give them a great show, so that वो 2 घंटे जो हैं उनको कुछ एक अच्छा देखने को मिले और उनका mind divert हो जाए. Thank you very much. Thank you so much. Abhishek, Thank you.
थैंक यू। अब एज अ पार्ट ऑफ आवर सालाना रूटीन, अब हम आपके थोड़े से पोज फोटोग्राफ्स लेंगे। तो आप सबको बता दूं, सुन लीजिएगा, बिग बॉस के फैंस के लिए सीन जरूर पलटेगा। 3 अक्टूबर रात 9 बजे एंड वीकडे यानी कि मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 PM ओनली, सिर्फ कलर्स पर, और टीवी से पहले एक्सक्लूसिवली ऑन वूट सेलेक्ट, ऑल्सो ऑन कलर्स HD, कलर्स HD +1 वगैरह वगैरह। दो 2020 को जवाब, पलट दो सीन को by meeting Big Boss. Till then, do whatever you want to do, man, but do it wearing mask and gloves and sanitize. बोर्डम होगा चकनाचूर, टेंशन का उड़ेगा फ्यूज, स्ट्रेस का बजेगा बैंड, होपलेसनेस की बजेगी पुंगी। अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देगा 2020 को जवाब। MPL presents Big Boss, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme. Grand premiere शनिवार 3 अक्टूबर रात 9 बजे। किसने सोचा था हमको करना पड़ेगा झाड़ू, खटका और पोछा, बट फिकर नॉट, अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब। MPL presents Big Boss, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme. Grand premiere शनिवार 3 अक्टूबर रात 9 बजे। द लार्जर पिक्चर इज दिस। ये टीवी देखने वाले हमारी लाज रख लेना।